अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, जब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो भारत गए तो दोनों मुल्कों की नज़रें पाक भारत ताल्लुकात के मुस्तकबिल पर लगी हुई थी। उम्मीद थी कि कोई ना कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा और शायद दोनों ममालिक के सफारती ताल्लुकात तो बहाल हो ही जाएं। पर बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के जवाबी वार ने दोनों मुल्कों की आवाम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे क्या मुहर्रकात थे, आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे। मोतबर ज़राए के मुताबिक जब बिलावल भुट्टो गोवा के ताज होटल में थे तो भारत के सरकारी मीडिया ANI ने बिलावल भुट्टो का एक इंटरव्यू किया और उनसे पाकिस्तान की अक़लियतों के बारे में सवाल पूछा। जवाब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि हिंदुस्तान को गुजरात में अपनी अक़लियतों के बारे में फ़िक्र करनी चाहिए। ये इंटरव्यू भारतीय दफ्तर ख़ारजा ने देखा, उनको बुरा लगा और उन्होंने इस इंटरव्यू को दबा दिया। फिर इसके बाद 5 मई को बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तानी मीडिया से बात करते हुए मकबूजा कश्मीर में होने वाली G20 कॉन्फ्रेंस के सवाल पर जवाब कुछ यूं दिया। हम इस चीज़ को मज़ाहमत करते हैं और वक्त पे एक ऐसा जवाब देंगे कि हमको याद रहेगा, मगर इसका ये करना ही इनका पैचीनेस को दिखाता है। इट इज़ अ शो ऑफ देयर एरोगेंस टू द वर्ल्ड कि टू हेल विद इंटरनेशनल लॉ, to hell with United Nations Security Council resolutions, to hell with any bilateral agreement. India will hold their events in Kashmir. What they'll find is they will be unable to achieve 110% attendance because other people will not compromise on their morals. ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया को दी और उसके ठीक 1 घंटे के बाद भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें पाकिस्तानी मीडिया मौजूद था, उनको इनवाइट किया गया था और मुझे भी एक सवाल करने का मौका मिला। As a foreign minister of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. India and Pakistan should sit together. You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. Victims of terrorism defend themselves, counter acts of terrorism, they call it out, they delegitimize it, and that is exactly what is happening. So to come here and preach these hypocritical words as though we are on the same boat, I mean, they are committing acts of terrorism. And you know, I don't want to jump the gun on what happened today, but I think we're all feeling equally outraged. So I think, I mean, let's be very, very clear on this. You know, on this matter, the terrorism matter, I mean, I would say Pakistan's credibility is depleting even faster than its forex reserves. So you know, let's be clear what this is about. Hello, my name is Muneeze Jahangir. I'm from Pakistan, from Aaj TV, and my question to you over here is that the Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari made a bold move by coming here, and it is being seen as a breakthrough. He is also being criticized, but how do you, India, see it? Do you see it as a breakthrough, and what will be your roadmap in the future to resumption of at least diplomatic ties with Pakistan? Your question, you know, is this a breakthrough? Look, he came here as a member, a foreign minister of an SCO member state. That is part of multilateral diplomacy. Please do not see it as anything more than that. It was not meant as anything more than that. It was not treated as anything more than that. And I think nothing that from what he said or what I heard he said deserves for this to be treated more than that. उनका कोई G20 से लेना देना नहीं है. I will also say उनका कोई श्रीनगर से भी लेना देना नहीं. There is only one issue to discuss on Kashmir, which is when does Pakistan vacate its illegal occupation of Pakistan occupied Kashmir. तो नाजरीन, क्या भारतीय वज़ीर ख़ारजा का ये जारहाना रवैया बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से था, या जयशंकर और जो ANI को उन्होंने इंटरव्यू दिया था ताज होटल में, या जयशंकर कर्नाटका में होने वाले इलेक्शन को जीतने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं? सियासी पंडितों का कहना है कि बीजेपी सरकार कर्नाटका का इलेक्शन
हार सकती है। ये वही कर्नाटका है जहां मुस्कान खान को हिजाब लेने पर हरासा किया गया था। कर्नाटका का जो इलेक्शन है वो आने ही वाला है और कर्नाटका में मुस्लिम आबादी 13% है और ये बीजेपी से सख्त नाराज़ नज़र आती है। इस वक्त हमने हिंदुस्तान से दावत दी है अमिताभ मट्टू साहब को, जो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में प्रोफेसर हैं। वो जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला के मुशीर के तौर पर काम कर रहे हैं और उन्होंने मनमोहन सिंह और परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में भारतीय हुकूमत को मशवरे दिए। जो ट्रैक टू डायलॉग है उसका एक अहम हिस्सा रह चुके हैं और उनके साथ हिंदुस्तान से ही हमारे साथ मौजूद हैं विवेक काटजू साहब, साबिक भारतीय सफारतकार हैं। वो भारतीय वजारत ख़ारजा में बतौर सेक्रेटरी काम कर चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हमें मुर्तज़ा सुलंगी साहब भी ज्वाइन करेंगे। वो सहाफ़ी हैं जो इस वक्त के अंदर जो हैं गोवा गए थे, सीनियर सहाफ़ी हैं। एंड हमारे साथ होंगे मुजाहिद बरेलवी साहब, सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, तज्ज़ियाकार हैं। वो भी गोवा जाने वाले सहाफ़ियों के वक्त का हिस्सा थे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे साथ मियाँ अंजुम निसार हैं, साक चेंबर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदे हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अमिताभ मट्टू साहब, आपकी जानिब आऊँगी और यही सवाल आपसे पूछूंगी कि जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और एक आउटबर्स्ट हुआ जो जयशंकर साहब ने किया, आपको क्या लगता है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकरीर की उसके नतीजे में हुआ या जो बिलावल भुट्टो ने ANI को इंटरव्यू में दिया उसके नतीजे में था? देखिए, ANI का इंटरव्यू के बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो तकरीर उन्होंने SCO में की और बाद में जो उन्होंने पाकिस्तानी पत्रकार प्रेस पीपल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत की और कहा कि हम उनको क्योंकि वो भारत G20 की एक मीटिंग श्रीनगर में कर रहे हैं, तो हम उनको एक जवाब देंगे, ऐसा जवाब देंगे जो याद रखेंगे, या कुछ ऐसे लफ्ज बोले। देखिए, उम्मीद तो मुझे भी थी और कई लोगों को उम्मीद थी कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी आ रहे हैं वजीर खारजा बन के यहाँ भारत, और अभी यंग हैं, नौजवान हैं, कई उम्मीदें हम उनसे रखते थे कि एक माहौल बनाने के लिए आएंगे। लेकिन जो फर्स्ट इंप्रेशन भी था और जो इंटरव्यूज में राजदीप सरदेसाई के साथ किया या सुहासिनी हायदर के साथ किया या जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और जो बोला भी वहां, जो हमने सुना टीवी पे, उससे नहीं लगा कि ये माहौल बनाने आए हैं। देखिए, एक माहौल बनाना होता है तो पहले किसी को बताना होता है कि हम ऐसी बात करेंगे, ये करेंगे, फिर उसके बाद बायलैटरल इस बारी नहीं तो अगली बारी बनेगी। ये लगा कि ये दिखाना चाहते हैं पाकिस्तान में या GHQ को या शिरीन मजारी जैसी लोगों को या बाकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी इमरान खान है या बाकी जितने टेंडेंसीज हैं एक्सट्रीमिस्ट के। देखिए, मैं किसी से कम नहीं, और मैं भारत में जाता हूं तो मैं भारत में दिखा सकता हूं कि मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, लेकिन ये स्टेट्समैनशिप नहीं है। क्योंकि अगर आपने यही कहने के लिए गोवा आना था तो फिर आप जैसे डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने ऑनलाइन किया, आप ऑनलाइन भी कर सकते थे। मगर डिफेंस मिनिस्टर ने जो है अपने नुमाइंदे भेजे, वो खुद तो नहीं आए। मगर पॉइंट टेकन अमिताभ साहब। विवेक साहब, आप अमिताभ की बात से जो अमिताभ साहब की बात से मुत्तफिक हैं, चूँकि एक कर्नाटका इलेक्शन का भी एक फैक्टर है। कर्नाटका का इलेक्शन होने वाला है, वहाँ पे बीजेपी सरकार को शायद अपनी हार नज़र आ रही है, वो भी एक फैक्टर हो सकता है। अगर बिलावल भुट्टो अपनी कंस्टिट्यूंसी को प्ले कर रहे थे तो क्या आपके जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो अपनी कंस्टिट्यूंसी को प्ले नहीं कर रहे थे? देखिए, मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयान जो उन्होंने गोवा में दिए उससे आपको जरा पहले ले जाना चाहते। जो कई लोग भारत में, और उसमें मैं भी शामिल हूं, नहीं भूले हैं वो अल्फाज जो उन्होंने मोदी साहब पर, हमारे वजीर आजम मोदी साहब के लिए इस्तेमाल किए थे अपने यूनाइटेड नेशंस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिसंबर में न्यूयॉर्क। जयशंकर साहब ने जनरल टर्म्स में पाकिस्तान पर इल्जाम लगाए थे दहशतगर्दी, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नौजवान हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मोदी जी अभी जिंदा हैं। इसके माने क्या?
वो छोटी उम्र के हैं। मगर उन्होंने उसकी वजाहत कर लेकिन दी। उन्होंने कहा अफसोस कि की देखिए बात कि ये जो भी मैंने डिप्लोमेसी के अंदर उन्होंने कहा कि कोई भी जाति वार नहीं होता, मैंने पर्सनल अटैक नहीं किया नहीं, था। ये अब मैंने भी जिंदगी गुजार दी डिप्लोमेसी में, मैं भी डिप्लोमेट रहा हूं। मुझे नहीं याद है कि 75 साल के हमारे इतिहास में, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के इतिहास में, कभी भी ऐसे अल्फाज एक नेता ने, एक वजीर ने कि दूसरे मुल्क के वजीर या वजीर आजम या सदर के बारे में कभी भी कहा कि वो जिंदा है। इसके माने क्या? ये डिप्लोमेसी में ये कहना कि पर्सनल नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। होता है, अगर इस तरह के आप अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो होता है। तो और आपका मुझे कहने का लगता है मकसद ये है कि बीजेपी सरकार, जो बिलावल भुट्टो ने अमेरिका में वजीर आजम मोदी के बारे में कहा था, उसको भूले नहीं है और ये उसके रद्द अमल में था। सही बात। अच्छा, ठीक है। मगर आप दोनों जो बात कर रहे हैं, मुजाहिद साहब वहाँ पे थे, गोवा के अंदर मौजूद थे, जिस किस्म के अल्फाज जो हैं भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने बिलावल भुट्टो के लिए इस्तेमाल किया, और उन्होंने फिर बाद में कहा कि उन्होंने मुझे भी परपेट्रेटर ऑफ टेररिस्ट बना दिया, कि जो दहशतगर्द हैं उनका एक सपोर्टर बना दिया। हालांकि मेरी अपनी वालदा जो हैं वो दहशतगर्दी का शिकार हुई। तो टिट फॉर टैट, मुजाहिद साहब आप कैसे देख रहे हैं? ठीक है, एक तो मुझे मुनीज़े इस बात पर हैरत हो रही है, हम पाकिस्तान में जब 3 सहाफ़ी बैठते हैं तो एक दूसरे से ज़रूर इख्तलाफ करते हैं। हमारे यहाँ तो बड़ी आमियत रही है ना, ये तो बड़े झमूरी लोग हैं। ये मुझे हैरत होती है कि जब पाकिस्तान का मसला होता है तो चाहे हॉक्स हों, चाहे फलां हों, ये ऐसा लगता है एक ही ज़बान बोल रहे हैं, कांग्रेस की और बीजेपी की, जो हमारे यहाँ नहीं होता। और मुझे ये बड़ी हैरत, और आप गौर कीजिए कि बिलावल साहब के आने से पहले वहाँ पोस्टर लग रहे हैं कि उनके सर की कीमत लगेगी। कभी आपने सुना है ये कोई कि सर की कीमत लगे? और सबसे बढ़कर ये कि सब कॉन्टिनेंट के कल्चर में, हम तो खैर बरेली के हैं, लखनऊ के हैं, वहाँ ये होता है कि अगर दुश्मन भी आता है खुशी या गमी में तो वो वेलकम करता है। बिलावल साहब आए तो उन्होंने नमस्ते किया। पाकिस्तान में बड़ा एतराज़ हुआ कि उन्हें कहना चाहिए था अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। उन्होंने नमस्ते किया, जिसके जवाब में उन्होंने कूल तरीके से इनके मुस्कुराए भी नहीं। फिर ये शंघाई कॉन्फ्रेंस थी, शंघाई कॉन्फ्रेंस थी, ये कोई इनकी कॉन्फ्रेंस नहीं थी। ये पाबंद थे कि उसमें 8 मुल्क के वजह से उनको बुलाते बिलावल साहब को। और क्या मेज़बान मुल्क, यानी मेज़बान कभी मेहमानों का इस तरह इस्तकबाल करता है? उन्होंने, कोई ऐसा लग रहा था कि वो शायद कोई पाकिस्तान इंडिया के दरमियान या कोई बीजेपी के लोगों से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने सफारती आदाब की पामाली की, सॉरी टू कहना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर ये कहता हूँ, आप भी थी, मेरे साथ थी, इंडिया के लोगों ने बड़ा अच्छा वेलकम किया। इंडिया के सहाफ़ियों से हम बड़े घुले मिले, सुहासिनी से, राजीव साई से। मेरा भी इंटरव्यू हुआ बिलावल साहब से, और मेरा बिलावल साहब से जो मैंने इंटरव्यू किया, एग्रेसिव किया उनसे कि आप ये कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये अफसोस होता है कि इतने पाए के सिफारतकार हमारे जी जो रहे हैं कांजू साहब, ये हों, इनसे मिले, तीसरे एक ही ज़बान में बात कर रहे होते हैं। तो सॉरी टू से पैट्रियटिज्म हमारे यहाँ भी है, और हमारे यहाँ तो इंतहा पसंदी का पैट्रियटिज्म रहा है। मैं और मुनीज़े जैसे सहाफ़ी कभी इसका शिकार नहीं हुए, तो इसलिए मुझे अफसोस हुआ कि अभी तक जो 2 मेरे मेहमानों ने गुफ्तगू की, ऐसा लगता है कि जैसे ये पीजेबी के तर्जमान गुफ्तगू कर रहे हैं, मोदी के तर्जमान गुफ्तगू कर रहे हैं, इन्हें प्रोफेशनलिज्म के तरीके से, और बिलावल साहब के पर इस तरीके से अटैक कर रहे हैं। उन्होंने इतने हम्बल तरीके से आए, उन्होंने नमस्ते किया। ये बात इनसे पूछते हैं, मगर अभी जल्दी के ऊपर तेल डालने वाला काम मैं नहीं करूंगी, और इसीलिए मैं दावत देती हूँ कि अंजुम निसार साहब, जो साक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदे हैं, वो अपनी बात रखें कि कुछ उम्मीदें भी थीं। ये उम्मीद थी और उम्मीद की किरण नज़र आ रही थी कि अगर दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती ताल्लुकात बहाल हो जाएं, जो तकसीम हुई हैं, डिवाइडेड फैमिलीज़ हैं, वो आपस में मिल सकेंगी। फिर जो लोग तजारत करना चाहते हैं, अब वो भी तजारत कर पाएंगे। अंजुम निसार साहब, आप क्या कहेंगे?
जी इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जी, ये सार्क जो है मुश्तमिल है 8 ममालिक पर, और ये 1985 से इसका वजूद है, और ये आगे इसलिए नहीं बढ़ सका कि इंडिया पाकिस्तान ऑलवेज टिट फॉर टैट एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ मामला कंट्रोवर्शियल किए रखते हैं, जिसकी वजह से इस पूरे खित्ते की मैं समझता हूँ कि ये जो है ना तरक्की जो है वो रुकी हुई है। हालांकि अगर आप देखें ऐसे ही एग्रीमेंट, रीजनल एग्रीमेंट जो है नाफ्टा है बिटवीन मैक्सिको, कनाडा, अमेरिका, बड़ा अच्छा चल रहा है और आपस में उनका लेन देन और बहुत बड़ा वॉल्यूम है। EU है, आसियान कंट्रीज़ हैं और वो एक दूसरे से बेनिफिट ले रहे हैं। हालांकि ये फोरम भी बहुत अच्छा फोरम है, स्टार्ट भी इसने अच्छा लिया, लेकिन बहरहाल 2016 ऑनवर्ड ये जो पाकिस्तान में जो 19वीं समिट होनी थी वो नहीं हुई। वो इंडिया ने भी उस पर कुछ इल्ज़ामात लगाए और फिर बहुत सारे मुल्कों ने बाइकाट किया, और कुछ चीज़ें सही भी होती होंगी, कुछ गलत भी हैं जो वक्त साबित करता कि गलत थी, लेकिन बहरहाल क्योंकि टिट फॉर टैट का एक सूरताल और पोटेंशियल कितना है अंजुम निसार साहब, अगर हम और ये भी एक अपॉर्चुनिटी थी, तो पोटेंशियल क्या ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। मैं समझता था कि इस डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटी को अवेल होना चाहिए था और खित्ते की जो आवाम को उसका कोई बेनिफिट मिलता। आपकी क्या तवक्को थी? मैं समझता हूँ कि आपकी क्या तवक्को थी? सियासत जो है वो हम तो ये देखें, मैंने तो आपको पहले ही कहा कि रीजनल एग्रीमेंट जितने भी दुनिया के ममालिक में हुए हैं और उसमें उसके रीजन को प्रॉस्पेरिटी मिली है, तरक्की मिली है, अवाम में खुशहाली आई है। हालांकि अगर आप इंडिया पाकिस्तान में देखें, एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो गुर्बत की जो सतह है उससे नीचे रह रहे हैं, बिल्कुल नीचे रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम जो आपस में की जो रीजनल ट्रेड है जिसमें आप टूरिज़्म है, इकोनॉमी है, जो भी जॉइंट वेंचर्स हो सकते हैं और इस तरह के बहुत सारे मामलात हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स का आपस में There's a huge opportunity। जी आपने बिल्कुल सही कहा अंजुम साहब। इधर मुझे एक छोटा सा वक्फा शामिल करना है, मगर फिर जो हमारे भारतीय मेहमान हैं भारत से हमें ज्वाइन करें उनसे ये भी पूछेंगे कि पिछले कई सालों से, बल्कि पिछले 3 सालों से चाइना और हिंदुस्तान के दरमियान लद्दाख को लेके जो है वहाँ पे एक तरीके से झड़पें हो रही हैं, मगर हमने देखा कि पिछले 2 महीने के अंदर हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान 2 बायलैटरल्स हुए हैं। एक जो है SCO की जो मीटिंग हुई है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉन्फ्रेंस हुई गोवा में, उसके अंदर भी एक अहम बायलैटरल हुआ। तो अगर झड़पें होने के बावजूद 2 बायलैटरल्स हो सकते हैं तो फिर पाकिस्तान के साथ ये बायलैटरल क्यों नहीं हो पा रहा, ये उनसे पूछेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाक भारत ताल्लुकात के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं और हिंदुस्तान से हमारे मेहमानों ने, अमिताभ मट्टू साहब ने हमें ज्वाइन किया है दिल्ली से, और हमें विवेक काटचू साहब ने भी ज्वाइन किया हुआ है। अमिताभ साहब, आपकी जानिब आऊँगी। मुजाहिद बरेलवी साहब की तो बात आपने सुनी कि जो आपके वज़ीर ख़ारजा हैं वो तो मुस्कुराए भी नहीं जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब उनके पास आए, मगर एक सवाल जो आपसे बनता है वो यही है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी ये कह चुके हैं कि जी जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं या जो दहशतगर्द हैं, क्या वो अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को डिक्टेट करेंगे या हमें दानिशमंदाना फ़ैसला ये होगा कि हम फिर से मुज़ाकरात बहाल करें? देखिए, पहले तो मैं मुजाहिद बरेलवी साहब, और आपने मुझे बताया कि मुजाहिद बरेलवी साहब असल में मुजाहिद अमन के हैं, तो मैं इनको अमन का ही पैगाम भेजूंगा। और जहाँ तक ये समझते हैं कि सब भारत में, हिंदुस्तान में एक ही बोली बोलते हैं, वो गलत है। जितने इख्तिलाफ एम्बेसडर काटचू साहब और मेरे रह चुके हैं, अगर आप यूट्यूब में देखें तो आपको पता चलेगा कि ये एक, समझिए, एक एक्सीडेंट है कि इस वक्त काटचू साहब और मैं एक ही, आपको लग रहा है कि एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन सचमुच जब बिलावल भुट्टो साहब आए हैं, उनकी शख्सियत से सब एक जो UN में बोलने के अलावा एक लगता था कि एक विरासत है उनके साथ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मिसेस गांधी ने एक सिमला एग्रीमेंट साइन किया, बेनज़ीर और राजीव गांधी का एक बड़ा पीस हनीमून रहा, जिसमें सियाचिन का भी मामला उन्होंने उठाया। रोनन सेन उनके नुमाइंदे थे राजीव गांधी के, वो बेनज़ीर भुट्टो के पास जाते रहते थे। तो उसी एक लेगेसी, एक हेरिटेज, एक विरासत की हमें उम्मीद थी कि एक जब आएंगे बिलावल भुट्टो तो एक नया पैगाम लाएंगे, एक नई हवा लाएंगे, ताकि गुफ्तगू कभी बंद ना हो आगे। लेकिन जो जिस तरह आए,
अब ये नमस्ते और मुस्कुराहटों का तो मुझे पता नहीं, ये शिरीन मज़ारी ज्यादा देखती रहती थी। उन्होंने कहा कि नमस्ते नहीं करना चाहिए, और बिलावल ने सही कहा कि सिंध और मुल्तान में नमस्ते कहते हैं। जयशंकर ने, मुझे नहीं देखा, मैंने उतना गौर से नहीं देखा कि किसके साथ उन्होंने मुस्कुराया नहीं मुस्कुराया। अब वो तो अलग बात है, लेकिन जहां तक बातचीत का सवाल है, जी उसमें मुझे लगा कि बिलावल की बात में कोई आगे बढ़ने की गुंजाइश ही नहीं थी। नहीं, एससीओ में उन्होंने कहा मगर कि मुझे इजाजत मजहबी दीजिए अमिताभ साहब, विवेक काटजू एम्बेसडर साहब से भी मैं बात करती हूँ। एम्बेसडर साहब देखिए, एक जो बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी की और जिस तरह अमिताभ साहब कह रहे थे कि जी पहल जो है वो हिंदुस्तान को करनी चाहिए थी, राह हमवार करनी चाहिए थी ताकि बातचीत हो सके और बायलैटरल रिलेशंस की रिजम्पशन हो सके। फिर दूसरी बात जो उन्होंने की, जो मैंने अमिताभ साहब से भी पूछी, कि क्या नॉन स्टेट एक्टर्स और दहशतगर्द जो हैं वो डिक्टेट करेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की रिलेशनशिप को? देखिए, इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि बिलावल साहब ने भी कहा, जैसे इमरान खान साहब पहले कह चुके हैं, कि जब तक जो तब्दीली जम्मू कश्मीर में हुई है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हुआ है, वो पलटा नहीं जाएगा, तब तक कुछ बातचीत की गुंजाइश ही नहीं। तो अगर ये शर्त पाकिस्तान ने लगाई है तो फिर तो बातचीत मुमकिन है ही नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है, और जयशंकर साहब ने जो कहा वो जयशंकर साहब ही का मत नहीं है, वो भारत का जो एक सियासी क्लास है, जो एक स्ट्रेटेजिक क्लास है, वो उस पर इस प्रिंसिपल पे बिल्कुल कोई भी इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। कांग्रेस का भी यही मैं ये ओपिनियन नहीं- होगा? जी, कांग्रेस का भी क्या यही ओपिनियन होगा ये कि बिल्कुल आर्टिकल यही 370 ओपिनियन को है हमने कि जी अब जो चेंज हो गया है उसमें कोई घड़ी वापस नहीं तब्दीली नहीं हो सकती। हाँ, ये जरूर है कि पार्लियामेंट में बीजेपी के नुमाइंदों ने और यहाँ तक कि होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा हुआ है कि एट एन अप्रोप्रिएट टाइम हम जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड फिर कायम करेंगे। लेकिन ये अंदरूनी मामला है, ये मेरे पाकिस्तानी दोस्त मैं नहीं समझता कि वो जो भारत में एक फीलिंग है, जैसे आपके वहां फीलिंग है जम्मू कश्मीर के बारे में, आपके लोगों को ये याद रखना चाहिए कि भारत में भी उतनी ही इंटेंस, उतनी ही गहरी फीलिंग। फर्क इतना है कि हम उसको इतना ज्यादा जोर शोर से कहते नहीं। अच्छा क्योंकि हमारे जो एक आखिरी शब्द में कह दूं, जी क्योंकि हमारे जो इंटरेस्ट सब हैं वो बहुत बढ़ गए। आपने चीन का जिक्र किया, अगर आप इजाजत दें तो मैं कहूं, हाँ, चीन के साथ हमारे बहुत गहरी मुश्किलें हैं, बाउंड्री पर बहुत गहरी मुश्किलें हैं। लद्दाख के बातचीत ऊपर का झड़पें हो रही हैं। सिलसिला जी सही आपने कहा, झड़पें हुई हैं। अब आपके फौजी भी मारे गए हैं। 2020 में हमारे फौजी मारे गए हैं। चीन ने भी ये माना है कि उसके फौजी मारे गए हैं, लेकिन मारे गए हैं, लेकिन बातचीत जारी है। और उसकी क्या तिजारा वजह बंद है? नहीं। क्या जो आपकी ट्रेड का हुजम जो है $136 बिलियन है हिंदुस्तान और चीन के दरमियान, क्या ये वजह है कि उनके साथ झड़पें हैं, फौजी भी मारे जा रहे हैं, मगर बातचीत चल रही है, बायलैटरल्स हो रहे हैं, मगर पाकिस्तान के साथ नहीं? नहीं, देखिए, हमने ये कहा है कि जो सिचुएशन, क्योंकि चीन ने जो 1990 की अंडरस्टैंडिंग्स थी वो तोड़ी हैं, इसलिए फिर से वो जो नॉर्मल सिचुएशन थी वो नहीं हो सकती जब तक पीस और ट्रैंक्विलिटी बॉर्डर पे नहीं आए। लेकिन तिजारा बंद नहीं हुआ है। हाँ, हम मैन्युफैक्चरिंग अपनी बढ़ाना चाहते हैं। मगर सर इसकी वजह ये- क्या है कि चीन के साथ तो बायलैटरल्स हैं मगर झड़पें भी हो रही हैं, मगर पाकिस्तान के साथ नहीं? क्योंकि क्योंकि चीन ने कभी तिजारे में वो शर्तें नहीं लगाई जो पाकिस्तान ने लगाई। अच्छा, अब इसके पाकिस्तान पर ने तो इस हमें बात को मुझे आगे बढ़ाने दें, ये अहम सवाल आपने उठाया है।
मुजाहिद साहब, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, उन्होंने ये कहा कि जब तक हिंदुस्तान 5 अगस्त 2019 की पोजीशन पे, जो पहले थी पोजीशन कश्मीर के ऊपर, उस पे नहीं चला जाता तब तक बातचीत नहीं हो सकती। और फिर हमने देखा कि उनके हम मनसब जयशंकर साहब ने ये कहा, वेक अप एंड स्मेल द कॉफ़ी, आर्टिकल 370 इज़ हिस्ट्री, द सूनर यू रियलाइज इट इट्स बेटर। इसका मतलब क्या है कि क्या बातचीत हो ही नहीं सकती पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान? अगर हिंदुस्तान बैक ट्रैक ना करे कश्मीर के हवाले से, क्या होगा? फिर तो हम स्टेलमेट में आ गए। मुनीस, एक तो शायद मेरे मेहमानों को ये नहीं पता और कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत किन लोगों ने की। वही लश्कर, सिपाह, शिद्दत पसंद, इंतहा पसंद उन लोगों ने की, नॉन स्टेट एक्टर ने की। और मुझे अफसोस ये है कि हिंदुस्तान में वो आ रहे हैं, दुश्मन आ रहे हैं, यानी बाकायदा आप तस्वीरें लगा रहे हैं अपने मेहमान की कि इसके सर की कीमत करोड़ों रुपए लगाई जा रही है। कांजू साहब जैसे लोगों ने या इन लोगों ने इसकी मजम्मत की कि कोई पाकिस्तान से आ रहा है, कोई दुश्मन और काफिर से काफिर कोई भी आए उसका इस तरह इस्तकबाल किया जाता है। क्या आपने कहीं पढ़ा कि इस बात की किसी ने मजम्मत की कि बिलावल भुट्टो के आने से पहले पोस्टर लगे हो जिसमें लगा हो कि इनके सर की कीमत करोड़ों रुपए लगेगी? बिल्कुल, आपने ये बात कही, मगर जो एक बात कश्मीर के ऊपर एक मामला, इजाजत दें मुझे, जी, अगर इजाजत दें तो मैं एक शब्द कह लूं। जी बताइए। और जो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि मोदी साहब अभी जिंदा हैं, उसामा की मौत हो गई है लेकिन मोदी साहब जिंदा हैं, क्या पाकिस्तान के वजीर आजम ने अपने वजीर से कहा कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते हैं? क्या आपने कहा? अगर ये है तो हम उसकी मजम्मत करते हैं, गलत कहते हैं इनको। कहा ये? अगर ऐसा कहा तो हम तो करते हैं, हम तो कहते हैं, वो पहले हम तो कहते हैं। नहीं, अच्छा चले, आप अगर एप्पल टू एप्पल करेंगे, आप तो बहुत सीनियर आदमी है ना, आप तो बहुत बड़े सिफारतकार हैं, मैं तो एक सहाफ़ी हूँ। क्या ये दुरुस्त था, ये जो तस्वीर लगना, करोड़ों रुपए सर की कीमत लगाना? ये आप ये एग्री करते हैं इससे? आप मेरी बात का जवाब दें, क्या ये दुरुस्त था? नहीं, आप मेरी बात का जवाब दीजिए ना। आप तो मेरी जवाब का जवाब नहीं दे रहे। आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? कि बेटे ऐसे अल्फाज आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या किया है एम्बेसडर काटजू? बात ये है कि अगर उनके सर की कीमत लगी हुई थी और वो हिंदुस्तान आए तो फिर सवाल तो किया जाएगा। ये तो मुनीस जी, ये पहली बारी मैं सुन रहा हूँ, अगर किसी ने ऐसे लगाए हैं तो समझिए। अच्छा, अमिताभ बट्टू साहब इसकी मजम्मत कर रहे हैं कभी इस तरह का हुआ जैसे है? और साथ ही साथ मैं नहीं, मेरी बात का जवाब दें। आप अपनी बात, आप इतने माशाल्लाह सीनियर से बात अमिताभ साहब की बात सुनते हैं। कर रहे हैं जी, अमिताभ साहब वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मुनीस जी, लेकिन सबसे आपने जो मुद्दा खड़ा किया कि क्या स्टेलमेट है, देखिए स्टेलमेट नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं, और ये अभी आपकी एक टेलीविजन शो में 2 जर्नलिस्ट ने इस पे बात की कि जब आर्मी चीफ बाजवा थे और उनके आईएसआई चीफ फैज साहब थे जनरल, उनकी बातचीत थी बैक चैनल से भारत के साथ, और वो बातचीत की वजह से ही आज आपकी एलसी में अमन है। तो डिस्कनेक्शन एक रियलिटी का तो फिर है कि भुट्टो जरदारी साहब का, क्योंकि अगर आपकी फौज और आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी बात करने को तैयार है, वो आगे ले जा रही है, तो आप शर्तें लगा रहे हैं कि जब तक हम घड़ी वापस ना ले जाएं तो तब तक हम बात। मगर ये सवाल आप दोनों से करना चाहिए, और बल्कि आप सब बैठे हुए हैं, कि अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट्स आपस में बात कर सकती हैं तो फिर हमारे सियासतदानों से बात क्यों नहीं की जाती? ये बात तो पाकिस्तान में भी की जाती है कि आपसे बायलैटरल करने की एक उम्मीद थी, मगर बायलैटरल्स जो हैं वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पसे पर्दा होते हैं, एक ट्रांसपेरेंट और लोगों के नुमाइंदों के साथ, अवाम के नुमाइंदों के साथ, सियासतदानों के साथ क्यों नहीं हो पा रहे? ये हम पूछेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, पाक भारत ताल्लुकात के ऊपर बातचीत हो रही है। हमारे साथ हिंदुस्तानी गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं।
मुजाहिद बरेलवी साहब ब्रेक के दौरान भी काटजू साहब, एम्बेसडर काटजू, अमिताभ साहब भी कह रहे थे कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी को एक मीटिंग की तलब थी तो वो खुद पूछ सकते थे और बायलैटरल हो सकता था। मगर एक परसेप्शन यहाँ पे पाकिस्तान में बनी हुई है कि जो भी इंगेजमेंट होती है वो इस पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ होती है और हिंदुस्तान इसको ज़्यादा पसंद करता है। जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं उनके साथ ज़्यादा इंगेजमेंट वो करना पसंद नहीं करते। क्या ये दुरुस्त है? देखिए, एक तो मुनीर, आपको याद होगा कि हम लोग पता नहीं 14-15 साल पहले अमृतसर के रास्ते जम्मू गए, किस तरह हमारा वेलकम हुआ। जम्मू से हम श्रीनगर गए, श्रीनगर से हम दिल्ली गए। फिर ये भी अच्छा खुशगवार इत्तेफाक था कि इतने बरसों बाद फिर हम दोनों साथ थे और हमें बॉर्डर से लेकर अमृतसर से लेकर दिल्ली, फिर गोवा, हमें कहीं एहसास ही नहीं हुआ किस तरह उन लोगों ने वेलकम किया। ये वो लोग थे। अब पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम ये है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारे जो बाकायदी हुकूमतें हैं वो हाईजैक हैं यहाँ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से। बदकिस्मती से दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरिया, जिसके मैं समझता हूँ कि अगर गिना जाए तो जवाहरलाल नेहरू से बड़ा डेमोक्रेट कम से कम इस सदी में पैदा नहीं हुआ, वो हाईजैक हो गई और करते करते वहाँ तक आ गई, यानी उसका सरबरा मोदी साहब जैसे बने। और ठीक है, डेमोक्रेसी अगर ये है कि वो जिसे भी चाहे रिजेक्ट करें, और वो जो बड़े जिन्होंने जो कुछ किया गुजरात में, वो ऐसी एक उन पर बदनुमा दाग है जिसे वो उनकी जनरेशन भुगतेंगी। मैं नहीं करूं जो कुछ उन्होंने किया और जस्टिफाई करते रहे, हम फिर भी मेंशन नहीं करते उसको जी। लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि हम पॉलिटिशियन जो भी बात करें, लेकिन अगर कांजू साहब और ये लोग बात करें और आप बात करें तो हम इंटेलेक्चुअली बात करें, रैशनल बात करें। मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब की शादी में मोदी साहब आए थे, बाकायदा जहाज भर के, उनकी बहू नवासी की शादी में बड़ा वेलकम किया गया उनको। अपर क्लास अशराफिया के तो ये ताल्लुकात हैं जी। लेकिन मुजाहिद बरेलवी और आम आदमी जो है उसका दाखिले में पाबंदी, आने में पाबंदी, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, पाबंदियां। बिल्कुल मैंने यही कहा था, कश्मीर को फ्रीज करें, ट्रेड करें और ह्यूमन लेवल पे आना जाना शुरू कर दें। ये दो काम करते हैं। मैं अगर जी मैं आती हूँ आपकी तरफ आती हूँ। अंजुम निसार साहब भी बैठे हुए हैं, साक चेंबर ऑफ कॉमर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अंजुम निसार साहब, बिल्कुल मुख्तसर सा बताइएगा कि पोटेंशियल क्या है दोनों ममालिक में? अगर हम तजारत खोलते हैं तो है क्या पोटेंशियल? वैसे देखिए जी, इस वक्त दुनिया की 21%, 21-22% जो आबादी है वर्ल्ड की, वो इस खत्ते में है, ये 8 ममालिक में है, और तकरीबन $5 ट्रिलियन की जो है GDP है। और अगर देखें, पाकिस्तान भी बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करता है, तो हम जो बहुत सारी चीज़ें इंडिया से इंपोर्ट कर सकते हैं। एक तो है कि अगर ट्रेड खुलती है तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट हमें भी होगा, इंडिया को भी होगा। उसकी रीज़न ये है कि हमें फ़ायदा ये होता है कि जो फ्रेट कॉस्ट कम आ जाती है और चीज़ जो है वो वक्त डॉक्यूमेंट्स बाद में पहुंचते हैं, चीज़ पहले पहुंच जाती है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं रीजनल ट्रेड के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब देखें, यूरोप ने भी सर, वो बाद में यूरोप की बात करेंगे। अभी जो आपने पॉइंट उठाया वो अहम है सर, वो उसी को आगे लेके चलते हैं। अमिताभ, मैं आपसे अर्ज करूं, लेट मी मैं अपने पॉइंट की तकवीत देना चाह रहा हूं। दुनिया में जो पहली वर्ल्ड वॉर हुई वो इंडिया पाकिस्तान में तो नहीं हुई, वो तो यूरोप से शुरू हुई। सेकंड हुई तो वहीं से शुरू हुई। उन्होंने अपने इख्तलाफात अपने मिटा लिए, हालांकि वो शदीद आपस में नहीं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, वाकई में आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये बात सही है और सबको मालूम है। लेकिन हमें भी बिल्कुल सर, सही बात आपकी है। अमिताभ मट्टू साहब से भी ये पूछते हैं। देखिए, वो बात तो सही कह रहे हैं ना कि अगर यूरोप अपने इख्तलाफात हटा के आगे ट्रेड कर सकता है, तो जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे थे कि नॉन स्टेट एक्टर्स और दहशतगर्द जो हैं वो अब इस खित्ते का फैसला करेंगे। देखिए, आप अगर देखें तो प्रधानमंत्री मोदी ने, जहां वजीर आजम मोदी का सवाल है, उन्होंने पहले भी जब 2014 में हुकूमत संभाली थी तो नवाज शरीफ साहब को बुलाया था इनॉग्रेशन में। उसके बाद उनकी नवासी की या पोती की जो शादी थी और नवाज शरीफ साहब का बर्थडे था, उसमें वो काबुल से आके रुक गए। बिल्कुल बहुत कम ऐसे लीडर्स हैं जो ये कर सकते हैं, आप कितना भी पुराने किस्से सुनाएं। साथ ही साथ उन्होंने सज्जन जिंदल जो एक बिजनेस और ये जो बात उनके जरिए बैक चैनल चलाया था जी, करे हैं, और वो कई बात है कि ये भी आपका इंटरव्यू हुआ मियां मंशा का कि जहां वो मंशा ग्रुप के जो बड़े हेड हैं कि
अमन की तरफ हम जा रहे हैं। और जहां तक ये ट्रैक 2 डायलॉग का चल रहा था जो यहाँ इंटेलिजेंस एजेंसीज और नेशनल सिक्योरिटी लेवल पे, उन्होंने भी कहा था कि मोदी साहब शायद 21 अप्रैल 2021 में आ सकते हैं वहां पाकिस्तान। देखिए, मेरा मानना भी है कि पहल करनी है और लीडरशिप यही है, पहल करने की। और जहां तक आप कह रहे हैं कि आर्मी ठीक है। बात करना चाहते हैं, क्योंकि आज के दिन में यही लगता है कि आप अगर आर्मी से ना बात करें तो बाकी सियासतदान प्रेस वालों से बात करने का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये आपने जो नुक्ता उठाया, मेरे पास बिल्कुल आखिरी मिनट रह गया है। एम्बेसडर काटजू, अगर आप कहते हैं कि जी सियासतदान से बात करने का फ़ायदा ही नहीं है और सिर्फ यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट या आर्मी से बात करना है, तो फिर तो जो फैसले वो करते हैं वो भी आपको कबूल होने चाहिए और जो गलत फैसले करते हैं वो उनको आपको भुगतना चाहिए। देखिए, उसका भुगतना तो नहीं, उसका जवाब देते हैं।